Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 10. Today we are going to discuss the topic homeostasis in humans from your biology textbook, chapter number 11, on pages 21 and 22. So here we are starting our topic first with organs or main organs. Main organs work for homeostasis in the human body. Homeostasis in the human body. So first we have to write down the main organs which are actually working behind for homeostasis in your body. So like other complex animals, humans have highly developed system for homeostasis, and following are the organs, main organs that work for homeostasis in your body, and including lungs, then we have skin, and the third one is kidney. Third one is kidney. If you divide all these organs into their function, then what is the basic function of lungs? That they remove excess. What is the function of lungs? Starting from, I am writing here, remove. They are actually involved in the removal of excess carbon dioxide from your body. Excess carbon dioxide, which is a toxic gas for your body. So it has to be eliminated, and this work is actually performed by lungs. So carbon dioxide, which actually not only to remove excess carbon dioxide, but lung also perform to keep the balance of your body, keep balancing, maintain the balance of your body as well. Because when the excess amount of carbon dioxide is produced in different metabolic activities, or especially during cellular respiration, then this carbon dioxide must be removed. Otherwise, if it is accumulated in your body and approximate 4% and more, it can be accumulated in your body. So it has to be removed for this reason, that it can be the toxic and it can create many or produce many poisons inside your body. So it has to be removed, and this is done by lungs. Second point or the second organ is skin. And how does the skin perform its function? First main function of the skin is to maintain or regulate, maintain body temperature. So this is one of the most important function of the skin, कि ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखती है, और साथ साथ along with it also involved in the removal of excess water and salts. Removal of excess water and salts. Excess water mean इजाफी पानी, and salts जो डिफरेंट तरह के जो नमकियात, इजाफी नमकियात आपके जिस्म में मौजूद होते हैं, उनको निकालने का काम भी स्किन का होता है. और इस एक्सेस वाटर और सॉल्ट का जो रिमूवल होता है आपकी बॉडी से, वो ज़्यादातर किस शक्ल में होता है? स्वेट्स, या जिसे आप स्वेटिंग कहते हैं, पसीना आने की शक्ल में. इसके अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो हार्मफुल टॉक्सिक जो मटीरियल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको निकालने का काम भी स्किन परफॉर्म कर सकती है. नेक्स्ट वी हैव द थर्ड मेन ऑर्गन ऑफ द होम्योस्टैसिस, एंड इट इज़ किडनी. एंड basic function of the kidney is the filtration. First of all the filtration and then the formation of urine. अब ये filtration क्या है? filtration में ये होता है कि जिस तरीके से आप एक इम्प्योर वाटर को छानते हैं, फ़िल्टर करते हैं, साफ़ पानी यानी फ़िल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह किडनी भी आपकी बॉडी के अंदर आपके जो पानी होता है या डिफरेंट जो और मटेरियल्स होते हैं उनको फ़िल्टर करती है, खून से उनको साफ़ करती है, खून को बिल्कुल प्योर कर देती है. और इसमें जो मज़ीद हम ऐड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फ़िल्टर किया जाता है. सो दे इंक्लूड एक्सेस वाटर, salts, urea, uric acid, and so many other harmful chemicals or harmful materials which are produced by or during different metabolic activities, and they have also be removed
they must have been removed from the body, and this is done by the kidney during the process of filtration. And finally, the another important thing which kidney perform is the formation of urine after filtering everything. यूराइन फॉर्मेशन, यानी जैसे ही तमाम चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं तो आखिर में वो जितना वेस्ट होता है वो आपके यूराइन की शक्ल में आपकी बॉडी में जमा होता है, और आप उसको साइड बाय साइड जो है अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद आपको इन तमाम चीज़ों से निजात मिल जाती है और इस तरीके से आपकी बॉडी बिल्कुल, आपका ब्लड जो होता है वो बिल्कुल प्योर हो जाता है. सो आफ्टर knowing about the main organ of homeostasis in humans, now we are coming across side by side to all those organs which are responsible for homeostasis, and the first one is skin. We are starting the first main organ of homeostasis, skin. Now for this topic you have to note down that you have to write down the structure first, and then we'll move on to the function of the skin. So structure, basically the human skin consists of two layers, and these layers are called the epidermis layer. First of all, epidermis, outer layer that is called, and the second layer is called dermis, the inner layer. Now basically what is the basic difference? What is the basic difference or the main difference between the epidermis and dermis? These are the two outer and inner layer of human skin. So dermis and the epidermis have, first of all, about their location, the first difference will become, it is the outer protective layer of your skin. आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ये आपकी स्किन की सबसे बैरूनी जो है वो बाहर वाली लेयर है, हिस्सा है या तय है, जिसको आप हिफाजती तय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो जर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैरूनी आपके स्टिमुलाई होते हैं, उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. और अनदर थिंग दैट दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स इन दैम. विदाउट ब्लड वेसल्स, इनके अंदर कोई खून की नालियाँ नहीं होती हैं, जिनको हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं. सो दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स इन दैम. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट द डर्मिस, देन इट इज़ द इनर लेयर. इट इज़ इनर लेयर ऑफ स्किन. एंड अनदर थिंग दैट नॉट ओनली दे कंटेन ब्लड वेसल्स, दे कंटेन, यहाँ पर हम लिख देते हैं विदाउट और यहाँ लिख देते हैं हम विद, ताकि आपको आइडिया हो जाए. सो दे एक्चुअली विद ब्लड वेसल्स और कंटेनिंग ब्लड वेसल्स along with some other structures like sensory nerve endings. सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उसके जो आखिरी सिरे होते हैं वो यहीं पर होते हैं. सो सेंसरी नर्व एंडिंग्स, दैन स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के जो गुदूद होते हैं जहाँ पर पसीना बनता है, अलॉन्ग विद ऑयल ग्लैंड्स जो बॉडी को चिकनाई प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं, एंड अलॉन्ग विद हेयर्स. इसके अलावा इसके जो बालों की जो जड़ें होती हैं वो भी यहीं पर होती हैं, एंड द फैट सेल्स, और चिकनाई वाले सेल जिससे आपकी स्किन मॉइस्ट रहती है, खुश्क नहीं होती. ये तमाम आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपके डर्मिस की लेयर में मौजूद होते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ फंक्शन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन? बेसिकली देयर आर टू फंक्शन रिलेटेड टू स्किन, and these function include, number 1, A, that is skin performs role in insulation. And what is the meaning of insulation here? Actually they are talking about that how skin regulates our body temperature. You can also write the heading in this way, that regulation of body temperature. Skin performs the function of regulation of body temperature.
ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी अंजाम देती हैं। सो टेम्परेचर, सो basically skin perform this function in this way, that thin layer of fat cells, for example this is the outer protective layer and this is the inner protective layer, that is called the dermis. So basically we are dealing with the inner layer, that is the dermis, and this inner layer contains the thin layer of fat cells, and these fat cells are present below the epidermis in dermis, and these are present in the dermis to insulate the body. What are the function of these? This layer or this fat cells present in the dermis, these fat cells insulate your body. Insulate mean that insulators से ये वर्ड आया है, और insulators क्या होते हैं? वो substances होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करते, हीट को गुजरने नहीं देते। तो एक तरीके से जब आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है तो वो हीट बाहर की तरफ जो है वो नहीं जाती, जिससे आपको सर्दियों के मौसम में जो सर्दी के असरात होते हैं उनसे ये महफूज रखने के लिए फ़ैट सेल्स काम आते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर। यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन्हीं के साथ, इन्हीं फ़ैट सेल्स के साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है। मतलब जगह जगह हम ये थोड़े से हम हेयर बना देते हैं, जो स्किन से बाहर भी आपको छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे होते हैं। तो ये स्किन से छोटे छोटे जो बाल नज़र आ रहे होते हैं ये आपके हेयर हैं, हेयर। और ये हेयर्स क्या करते हैं? ये हेयर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं कहाँ से, किसके साथ? कि इनके साथ बाकायदा तौर पे स्मॉल मसल्स होते हैं। स्मॉल मसल्स का क्या काम होता है? यानी बाकायदा तौर पे यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये स्मॉल मसल्स हैं, ये स्मॉल मसल इसके साथ अटैच हैं, और ये स्मॉल मसल्स क्या कर रहे हैं? ये स्मॉल मसल्स जो हैं बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं, और सिकुड़ने के साथ ही इनमें एक ऐसी मतलब कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में एक ऐसा फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बाकायदा आपके बालों को, जो पहले कैसे थे, थोड़े से टिल्ट फॉर्म में, मैंने बताया ना आपको, इस तरह से तो टेढ़े हुए थे, अब जैसे ही ये कंडीशन होती है जिसमें आपके बाकायदा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स जो हैं वो, तो बाकायदा तौर पे ये हेयर आपके इरेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। अब इसको उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, रोंगटे खड़े होना। वैसे तो हमारे हाँ जो है वो मुहावरतन ही कहा जाता है रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाना। तो उसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है गूज बम्प, यानी इस तरीके से बालों का खड़े हो जाना आपकी स्किन के गूज बम्प कहलाता है, गूज बम्प्स। इसको गूज बम्प्स इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे आपके जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो मसल सेल्स होते हैं या मसल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं आपके इन हेयर के साथ, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ये बाकायदा हेयर जो पहले थोड़ा सा टिल्ट होता है, नीचे की तरफ झुका होता है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बालों का खड़े होना या रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटों का खड़े होने को आप कहते हैं गूज बम्प। अब इस गूज बम्प की जो कैफियत की कंडीशन होती है, इससे एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट जो है वो वार्म एयर का पैदा हो जाता है, और इस गर्म हवा के एक ब्लैंकेट से, जिस तरीके से आप सर्दी के मौसम में स्पेशली ब्लैंकेट ले लेते हैं ताकि बाहर की जो ठंडक है वो अंदर ना आए, और अंदर से जो आपकी बॉडी हीटअप हुई है वो हीट जो है वो बाहर स्केप ना करे। तो इस पूरे अमल को उन्होंने कहा है कि ये गूज बम्प जो है वो इसमें हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं कि ये आपके बाकायदा तौर पे हेयर्स जो हैं बालों के उनको खड़ा कर देते हैं, और ये कैफियत हमारी इंडिकेट करती है कि अब हमारी बॉडी इंसुलेट हो गई है, अब हमें बाहर की जो ठंड है वो महसूस नहीं होगी, और ना ही हमारी बॉडी की जो हीट है वो बॉडी से रिलीज़ होगी। सेकेंड फंक्शन ऑफ स्किन इज़ टू प्रोवाइड रोल इन प्रोवाइडिंग और गिविंग कूलिंग इफेक्ट। रोल इन प्रोवाइडिंग और प्रोवाइड, सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, रोल इन कूलिंग, बहुत शॉर्ट हो जाएगी भी, डेफिनेशन याद करने में भी इजी होगी। रोल इन कूलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? दैट इट प्लेज रोल इन और हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट, कि ये हमें स्पेशली गर्मियों के मौसम में एक ठंडा एहसास हमें प्रोवाइड करती है। स्किन का क्या काम है कि ये हमें गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में तो हमें प्रोटेक्ट कर ही रही है गूज बम्प की क्रिएशन के साथ, लेकिन
बाकायदा तौर पे गर्मी के मौसम में भी हमें एक ठंडा जो है वो एहसास दिलाती है और हमारा जिस्म जो है वो हीट अप नहीं होता। और ये कब होता है? व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी वो स्वेट कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्वेट हम कहते हैं पसीने को, और ये प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। हमारे पसीने के जो गुदूद होते हैं स्किन के अंदर, स्पेशली कहाँ होते हैं? ये डर्मिस की लेयर के अंदर होते हैं। और इससे बाकायदा तौर पर इन स्वेट ग्लैंड्स में, चूँकि आपको पता है कि ग्लैंड्स हैं एक ऑर्गन की शक्ल में मौजूद होते हैं, इनके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू होता है। आपकी बॉडी का जो एक्सेस बॉडी हीट है वो बाकायदा तौर पे जमा होना शुरू हो जाती है, और फिर ये इवेपोरेशन की मदद से हीट आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी को एक ठंडा सा एहसास होता है और आपको फ़ील होता है कि जैसे अब गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी स्वेट के अंदर आपके पास होते हैं या आपकी बॉडी के अंदर होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद होते हैं। तो साथ साथ ये कि ठंडक का एहसास तो आपको हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि जितना भी जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रोड्यूस होता है, जिसमें हमारे एक्सेस वाटर शामिल है, यानी इजाफी पानी, यानी ऐसा पानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। इसके अलावा सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड वग़ैरह, ये तमाम आपके वो हार्मफुल मटेरियल्स हैं या एक्सेस मटेरियल्स हैं जिनकी आपकी बॉडी को कतई ज़रूरत नहीं होती। ये इजाफी चीज़ें होती हैं और इनका भी बॉडी से उसी तरीके से निकलना ज़रूरी होता है स्वेट के अंदर, जिस तरह बाकी तमाम आपके मटेरियल्स का है, जिसमें चाहे वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी और हार्मफुल मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लंग्स। और लंग्स के हवाले से हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आज के टॉपिक में भी हम तकरीबन उसी को रिकॉल करने जा रहे हैं। दैट व्हाट आर लंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग्स आर द पार्ट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंड विदाउट लंग यू कैन से यू इवन कांट रिस्पायर। आप जब ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर आप ज़िंदा रहने या ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। So as I told you in my previous lessons about the lungs, and we have also learned how lungs maintain the concentration of the carbon dioxide in the blood. Today we are going to discuss the same thing, that basically our cells produce carbon dioxide. तो हमारी for example अगर हम कहानी start करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आती है, कहाँ से क्या ये बाहर से कोई सोर्स है जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लेकर आता है? सो ऑब्वियसली इट्स नॉट द आउटर सोर्स, इट इज़ इंटरनल सोर्स, एंड दैट सोर्स इज़ द रिस्पायरेशन। एंड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन और द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी सेल के सांस लेने के अमल के दौरान आपके बॉडी के अंदर ही, सेल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के बाद आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिक लेवल यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो इसका रिमूव होना भी उसी तरह ज़रूरी है जैसे आपने बाकी तमाम मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना दूसरे मराहिल में स्किन के ज़रिए ज़रूरी समझा। अब चूँकि हमारी बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है और हमारे सेल्स के अंदर ये अमल हो रहा है, सो व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन, फाइनली फ्रॉम दीज सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। अब ये सेल्स जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? ये हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर आती है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। हमारी बॉडी में आपको सबको पता होना चाहिए कि दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक तरीके से आप इनको कहते हैं ब्लड और दूसरे को आप कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड, यानी लिम्फ भी इनको कहा जा सकता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज़ में आती है और फिर टिश्यूज़ से जो है वो फाइनली आती है, यानी टिश्यू फ्लूइड से फाइनली आती है ये ब्लड के अंदर। तो ये हमारे दोनों फ्लूइड का जिक्र हो गया कि ये फ्लूइड के से बाकायदा ट्रैवल करती हुई कहाँ तक पहुँच रही है? ब्लड्स में, और ब्लड से फाइनली ब्लड ही वो ज़रिया है जो कि इसको कहाँ लेके जा रहा है, जो आपके लंग्स की तरफ इनको लेके जा रहा है। और लंग्स के अंदर आने के बाद जब ये फाइनली अपनी लास्ट डेस्टिनेशन यानी लंग्स में पहुंचती है तो वहाँ से फिर ये एयर के अंदर रिमूव हो जाती है, खारिज हो जाती है।
तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसके नतीजे में लंग्स भी होम्योस्टेसिस यानी आपके बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने का अहम काम अंजाम दे रहे हैं।